السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں گلاب بلوچ۔ آپ کو عام خبر سے آگاہ کریں۔ کمیر میں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار عارف والا روڈ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ سڑک کی ارسر نو تعمیر پر شہری خوش ہیں، رپورٹ کریں گے محمد ارشد۔ لاہور میں تیز رفتاری نے کئی گھروں کے چراغ گل کر دیے۔ رائمنڈ میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر موٹر سائیکل رکشے پر چڑھ دوڑی، 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ گھر سے مزدوری کے لیے نکلنے والے تیز رفتاری اور غفلت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ گھروں سے فیکٹری جانے والوں کو کیا خبر تھی کہ لوٹ کر نہ آئیں گے۔ کوئی بچوں سے شام کو کچھ لانے کا وعدہ کر کے نکلا تھا تو کوئی اپنی ماں کو تسلی دے کر آیا تھا کہ راشن کے لیے پیسے لائے گا، لیکن سب چکنا چور ہو گیا۔ لاہور ریونڈ روڈ بھوپتیاں چوک کے قریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل رکشے کو ٹکر کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد موٹر سائیکل رکشے پر سوار فیکٹری میں کام کرنے جا رہے تھے۔ تیز رفتار کار بے قابو ہو کر موٹر سائیکل رکشے سے ٹکرا گئی، جس کے سبب سے موٹر سائیکل رکشہ الٹ گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں رکشہ ڈرائیور شہزاد، زاہد علی، محمد فاروق، زریاب اور حسنین شامل ہیں۔ حادثے کے بعد جاں بحق افراد کی لاشوں کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ معاشرے میں بڑھتے عدم برداشت کی ایک اور کہانی سامنے آ گئی۔ کوٹادو میں گھریلو جھگڑے پر ناہنجار بیٹوں نے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دریائے سندھ توسا براج کے مقام پر داخل ہونے والے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ متعدد بستیاں زیر آب آ گئیں، زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ چاول، گنے اور تل کی فصل شدید متاثر ہوئی۔ 4 لاکھ کیوسک پانی ریکارڈ ہونے پر درمیانی درجے کا سیلاب کی وجہ سے بھیڑے والی، خادم والی، مشوری والی، میرانی گاڑی اور گاموں والی بستیوں سمیت دیگر بستیوں میں پانی داخل ہو گیا۔ متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے کوئی امداد نہ دی گئی، پانی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ فاستی سپر بند نمبر 3 کے دریائی کٹاؤ میں تیزی آ گئی۔ کٹاؤ کو روکنے کے لیے مشینری سے پتھر ڈالنے کا کام جاری ہے۔ فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیے گئے۔ ڈیو ایریگیشن توسا براج کا کہنا تھا، ہم نے فلڈ سے ریلیٹڈ اب تک ہمارے سارے کیمپس فنکشنل ہو چکے ہوئے ہیں۔ ٹوٹلی دریائے سندھ کے ساتھ جو لگتے ہیں ہمارے 9 کیمپ ہیں، اور 9 کے 9 کیمپ پچھلے 3 سے 4 دن سے اپنی سروسز مکمل طور پہ دے رہے ہیں۔ باقی ہماری ساری سروسز، ساری پریپریشن اللہ کا شکر ہے مکمل ہے، اور جو ریلا آ رہا ہے 4,75,000 کا، ہم اس سے ریلیٹڈ ساری فلڈ کی ریلیف ایکٹیویٹیز کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ سر اس وقت جو ہے پانی جو ہے میرے پاس جو ہے نا 3,86,825 گزر رہا ہے۔ میڈیم فلڈ میں ابھی اس وقت چل رہا ہے۔ ابھی پانی جو ہے نا رائزنگ پوزیشن میں ہے، یعنی یہ 4.5 لاکھ مور دین 4.5 لاکھ سے ہی بہت جا سکتا ہے۔ اور اس وقت میرے سٹرکچر ٹوٹل سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، جناب خود ہی دیکھ رہے ہیں۔ باقی میں نے پوری اپنی ایکٹیویٹیز پوری جاری رکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگر کوئی کسی قسم کا کوئی ہمیں کوتاہی نہیں۔ دریائے سندھ توسا براج کے مقام پر 24 گھنٹے سیلاب کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ متاثرین نے حکومت پنجاب سے ریسکیو سروس کے ساتھ راشن اور دیگر امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ اسحاق کاظمی، سچ نیوز، کوٹادو۔ دریائے چناب میں آنے والے سیلابی ریلے نے شجاع آباد کے نشیبی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ متعدد بستیاں زیر آب، جبکہ کاشتکاروں کو سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ کپاس، ہری مرچ، مکئی اور فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ مزید جانتے ہیں وجاہت حسین کی اس رپورٹ میں۔ شجاع آباد دریائے چناب میں آنے والے 1.5 لاکھ کیوسک سیلابی ریلے نے شجاع آباد کے کچے اور نشیبی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ 1.5 لاکھ سیلابی ریلے سے موضع طاہر پور، خانپور، قاضیہ بگڑے، پونٹا سمیت متعدد موضوعات اور بستیاں زیر آب آ گئی، جس سے محنت کش کسانوں کی سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی کپاس، ہری مرچ، مکئی کی فصل بھی تباہ ہو کر رہ گئی۔ سیلاب سے متاثر کچے اور نشیبی علاقوں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ پانی آیا ہے نا، ہم لوگوں نے اپنی مدد ہم نے خود کی ہے، نہ کس جانور نکلوانے آیا ہے، نہ کوئی کسی کا پتہ کرنے آیا، نہ کسی نے اعلان کیا ہے پانی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ ہم اپنی مدد آپ کر رہے ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں تو ہم اپنی مدد آپ کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کرنے آ رہا۔ جب سے سیلاب آیا ہے ہماری فصلیں ڈوب رہی ہیں، ہمارے جانور ڈوب رہے ہیں، کوئی نکالنے کے لیے کوئی پتہ کرنے نہیں آیا۔ متاثرین کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے 1.5 لاکھ کیوسک پانی کے آنے کی اطلاع تک نہیں دی گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپ تو قائم کیے گئے ہیں، پر وہ بھی فوٹو سیشن تک محدود ہیں۔ ہمیں نہ ریسکیو کیا گیا ہے، نہ ہی ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، نہ ہی محکمہ ہیلتھ کی جانب سے کوئی بھی امداد دی جا رہی ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت سیلابی ریلے سے باہر کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں۔ متاثرین نے سچ نیوز کے توسط سے اعلیٰ حکام سے سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین مبشر الحق، کیمرہ وجاہت حسین، سچ نیوز، شجاع آباد۔
دریا سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے سے رجحان میں ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی اور درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے۔ مزید جانتے ہیں ملک طفیل کی اس رپورٹ میں۔ دریا سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ درجنوں دیہات زیر آب آ گئی۔ کچے کے سینکڑوں متاثرین کشتیوں کے ذریعے اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ گھر کے چودھار پانی ہے، نہ کوئی کشتی ہے، نہ انسانیہ ہے، نہ کوئی وغیرہ ہے۔ بالکل بچے ڈوب رہے ہیں، مال مویشی ڈوب رہے ہیں۔ 400-500 روپے کشتی والا رجحان تک لیتے ہیں، بندے بھوکے مر رہے ہیں، آج تک کوئی انسانیہ نہیں ہے۔ بہت طوفانی ہے، ہمارے جو مکان ہیں وہ بھی گر گئے ہیں، فصل بھی تباہ ہو گیا ہے۔ اپنی مدد سے جو مویشی ہیں، جو سامان ہے، ہم نکال رہے ہیں، کام تو لگا رہے ہیں۔ ادھر نظام میں کوئی آدمی نہیں ہے سالوں کا، اپنی آپ مدد سے ہم یہ کنارے پر آ رہے ہیں۔ جو کشتیاں ہیں پرائیویٹ وہاں کرایہ دے کے ضلع انتظامیہ کی جانب سے فلڈ کیمپ تو کیمپ کر دیا گیا ہے، جس میں ریسکیو ڈپارٹمنٹ 22 محکمہ ہیلتھ اور محکمہ انار کے کیمپ کر دیے گئے ہیں۔ تاحال محکمہ انار اور محکمہ لائف اسٹاف کا عملہ کیمپوں میں موجود نہیں ہے، کیمپ ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اس دور حکومت میں ہمیں کوئی چیز بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ جو بھی یہاں پہ فلڈ کیمپ جو لگا دیا گیا ہے، لائف اسٹاک کا بھی یہاں پہ کیمپ نہیں ہے، دوسری جانب محکمہ انار کا بھی یہاں پہ کیمپ نہیں ہے۔ یہ تمام تر جو کیمپیں ہیں یہ فردی ہیں اور یہ فوٹو سیشن کے لیے کیا ہوا ہے۔ کیمرہ مین ملک عزیر احمد کے ساتھ ملک طفیل، سچ نیوز، رجحان۔ دریا چناب میں درمیانے درجے کے سیلاب سے کبیروالا کے متعدد دیہات زیر آب آ گئے، جبکہ ہزاروں ایکڑ رقبے پر کاشت فصلیں بھی تباہ ہو گئیں۔ رپورٹ کریں گے علی سرگانہ۔ حالیہ بارشوں سے دریائے چناب اور دریائے راوی میں سیلاب کے باعث پانی کے کٹاؤ سے تحصیل کبیروالا کے متعدد علاقے زیر آب آ گئے۔ دریائے چناب کے سیلابی ریلے نے جہاں ہزاروں ایکڑ پر کاشت کی گئی کماد، چاول، کپاس کی فصلیں اور باغات کو نقصان پہنچایا ہے، وہیں متعدد بستیاں بھی زیر آب آ گئیں۔ سیلابی ریلے سے نواحی علاقے صاحب لنگرا کی مین سڑک میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے علاقے کا زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو چکا ہے۔ پانی گھروں میں داخل ہونے سے علاقہ مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور، جبکہ متبادل راستہ نہ ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ریسکیو 1122 کے اہلکار متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تاحال شگاف پر کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، جس پر علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے اور سڑک کے درمیان پڑنے والے شگاف کو فوری طور پر پر کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ آمد و رفت کا سلسلہ بحال ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں علی رضا سرگانہ، سچ نیوز، کبیروالا۔ دریا سندھ میں چاچڑا شریف کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب آنے سے ظاہر پیر کے نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ 250 گھروں پر مشتمل بستی کا زمینی راستہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے غفار رشید۔ دریا سندھ میں چاچڑا شریف کے مقام پر 3 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، جس سے چاچڑا شریف کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ یہاں کی کھڑی فصلیں اور مویشیوں کا چارہ بھی پانی میں ڈوب گیا ہے۔ تقریباً 250 گھروں پر مشتمل بستی کا زمینی راستہ سیلابی پانی کی وجہ سے بند ہو چکا ہے۔ سیلاب میں پھنسے ہوئے افراد اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقام پر نقل مکانی کر رہے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی امداد کے لیے ضلعی انتظامیہ نے فلڈ ریلیف کیمپ تو لگا دیا ہے، مگر ابھی تک یہ کیمپ فعال نہیں ہوا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ غفار رشید، سچ نیوز، ظاہر پیر۔ ڈیرہ غازی خان کی تحصیل کوٹ چھٹا کے علاقے جھکڑ امام شاہ کے مقام پر دریا سندھ کا کٹاؤ جاری ہے، جس سے ملحقہ علاقے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات علی رضا ہمدانی کی اس رپورٹ میں۔ غازی خان کی تحصیل کوٹ چھٹا کے علاقے جھکڑ امام شاہ کے مقام پر دریائے سندھ کے پانی کے بہاؤ میں مسلسل تیزی آنے کی وجہ سے دریائے سندھ کے قریبی علاقوں میں زمینی کٹاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ دریائی کٹاؤ کے باعث قریبی علاقے کے رہائشی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی تیار فصلات جہاں زمینی کٹاؤ کی زد میں آئی، وہیں قیمتی باغات بھی دریا اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ گزشتہ دنوں سچ نیوز کی نشاندہی کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چھٹا اسد چانڈیا نے جھکڑ امام شاہ کا وزٹ کرنے کے بعد آئندہ خطرات کے پیش نظر فلڈ وارننگ جاری کرتے ہوئے متعدد بستیوں کے مکینوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے احکامات جاری کر دیے، جبکہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مانا احمدانی میں فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب مقامی انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں صرف ایک ویٹرنری کیمپ قائم کر دیا گیا ہے، جبکہ لوگوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے حوالے سے ابھی تک کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ علاقہ مکینوں نے پرامن احتجاج
خراج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار سے فی الفور سپر بند مرمت کرانے کا مطالبہ کیا تاکہ جکھڑ امام شاہ سمیت متعدد بستیوں کو زیر آب آنے سے بچایا جا سکے۔ علی رضا احمدانی، سچ ٹی وی، ڈیرہ غازی خان۔ لیا تحصیل چوبارہ میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی، ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے، متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کریں گے ظہور دورانی۔ لیا کی تحصیل چوبارہ پنجاب کی پسماندہ ترین تحصیل ہے۔ چوبارہ میں ایک محتاط اندازے کے مطابق حالیہ بارشوں کے باعث جہاں سینکڑوں گھر منہدم ہو چکے ہیں، وہیں ہزاروں کی تعداد میں گھروں کو نقصان پہنچا۔ بارش کے سبب پیش آنے والے ان حادثات سے کئی بستیاں اجڑ گئیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ ان تباہل باسیوں کا میڈیا سے اپنی پریشانیوں اور حکومتی عدم توجہی کا گلہ کرتے ہوئے کہنا تھا، لوگ جو ہیں وہ بے یار و مددگار اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں سے جو ہے وہ سامان اس وقت باہر شفٹ کر رہے ہیں، باہر کھلی فضا میں، اور اس وقت لوگوں کا جو حال ہے ان کی گندم جو ہے وہ بھی تباہ ہو چکی ہے۔ اکثر لوگوں کے جانور جو ہیں وہ بارش 28 گھنٹے مسلسل بارش کی وجہ سے وہ جانور بھی مر چکے۔ اتنے بارہ کی وجہ کے بہت وڈی نقصان ہوئے، بڑی آبادیاں تباہ تھیں۔ اتنے حال تک کوئی سیاستدان کوئی عملہ نہیں آیا اتنے پوچھن بھائی اساں تساں جو پائے ہو کیڑے طریقے نال پائے ہو۔ اتنے تساں دے گنو یہ ساریاں اساں گندم باہر کڈی ہوئی ہے، چنیاں دے فصل ہیں وہ باہر کڈے ہوئے، اگے سال تھی گیا چنیاں دا فصل نہیں تھیا۔ بیزار و مددگار ان غریب و ناچار چوبارہ کے باسیوں تک ابھی نہ ہی کو حکومتی امداد پہنچ پائی، نہ ہی کو دلاسا دینے آیا۔ حکومتی ذمہ داران صرف سروے تک محدود ہیں، جبکہ متاثرین کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز، لیا۔ دریائے چناب میں ہینڈ پنجن کے مقام پر مسلسل پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے بند ٹوٹنے لگا، جس سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ رپورٹ کریں گے محمد صدیق۔ چناب کے ہیڈ پنجنات کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ اس اضافے کی وجہ سے زمیندارہ باندھ ٹوٹنے لگے اور سیلاب کا پانی بیٹ بختیاری، کچی شکرانی، رسول پور، جگیت صادقآباد، کچی لال کے علاقوں میں سیلاب کا پانی داخل ہو گیا ہے۔ سینکڑوں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ سیلاب کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے، کچے مکانات گرنے لگے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقام پر پہنچنے لگے۔ لوگوں کا ضلعی انتظامیہ بہاولپور سے گزارش ہے کہ ریلیف کیمپ لگا کر لوگوں کی مدد کی جائے اور کاشتکاروں کے فصلات کا نقصانات ازالہ کیا جائے اور علاقے کو آفت زدہ قرار دیا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد صدیق خان، سچ نیوز، چنگوٹ۔ لوئر کوہستان میں بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی، سڑکیں، پل اور بجلی کے پول اور واٹر چینل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کوہستان میں حالیہ بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب نے نظام زندگی کو درم برم کر دیا۔ سڑکیں، پل، پنچکیاں پانی کی سکیمیں تباہ ہو گئیں۔ اسی حوالے سے کوہستان کے شہریوں نے مزید بتاتے ہوئے کہا کہ یہاں جو علاقائی لوگ ہیں ان کے لیے اشیاء خودنوش کا نہایت ہی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں تقریباً 10 گھنٹے پیدل راستہ کرنا پڑتا ہے، جو کہ 10 گھنٹے پیدل راستے کے بعد وہاں سے راشن لینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو اشیاء خودنوش کی بہت زیادہ قلت ہے اور یہاں صحت کے حوالے سے یہاں مریضوں کی کوئی میڈیسن نہیں ہے۔ کوہستان کے شہریوں کا کہنا تھا کہ بارش اور سیلاب کی وجہ سے کئی علاقوں کی سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، جس وجہ سے ہمیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے یہاں خوراک کی بھی قلت ہے۔ ہم اعلیٰ انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے۔ دریائے سندھ میں سیون کے مقام پر نچلے درجے کے سیلاب سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ جوار، مکئی، کپاس سمیت دیگر تیار فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ کریں گے شمیر خان۔ سیون شریف کے مقام پر دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب، نشیبی علاقے مائی اوٹو، دری دیرو، نو واہن، پیرل ہالے پوٹو سمیت سینکڑوں دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ جوار، مکئی، تل، کپاس اور کسانوں کی دیگر تیار فصلات زیر آب آ گئے۔ اس کے علاوہ سبز مرچ، چاول سمیت کاشت کیے گئے نئے فصلات بھی پانی کے نظر ہو گئے، جس سے کسانوں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مقام نہیں کرنے پر مجبور ہیں۔ ضلع انتظامیہ جامشورو کی جانب سے فلڈ وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے اور علاقے مکینوں کو محفوظ مقامات پر نقل مکانی کرنے کا اعلان بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں۔ نہ میڈیکل کیمپ قائم کی گئی ہے، نہ ہی فلڈ کیمپ قائم کی گئی ہے۔ علاقے مکینوں کا کہنا ہے کہ سیلابی پانی سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ جو کشتیاں ہیں یہ ہم سے کرایہ لیتی ہیں، ایک آدمی یہاں سے وہاں پر جاتا ہے تو 20 روپے لیتے ہیں، ہماری اپنی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی ہیں، باہر سے آتے ہیں لے کے یہاں پر۔ ہم اپنی مدد پان کر کے خود وہاں پر جاتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ابھی کوئی ہمیں سہولت نہیں ملی ہے۔ ہمارا سائنس سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ یہ تو فلڈ جامشورو ڈسٹرکٹ جو پورا ہے یہ آفت زدہ قرار دیا ہوا ہے۔ ہم سائنس سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کشتیاں بھی دے
और ये बंद जो टूट गया है, पुल टूट गया है, वो पुल भी हमें बना कर दें। इलाके में किन्होंने वज़ीर आला हसन सैयद मुराद अली शाह जिले इंतजामिया जामशोरों से फ्लड रिलीफ कैंप और मेडिकल कैंप कायम करने का मुतालबा किया है। कैमरा मैन राजा सोलंकी के साथ शमीर खान ओठो, सच टीवी न्यूज़, सेवन शरीफ। झेलम की तहसील दीना में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया। शहर की सड़कें ताहाल तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन। दीना में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश इस कदर तेज थी कि नशेबी इलाके और सड़कें पानी में डूब गई। मंगला रोड दीना में सीवरेज का निजाम नकारा होने के बाइस बारिश का पानी सड़क पर तालाब का मंजर पेश करने लगा। इस तालाब नुमा सड़क पर अहले मोहल्ला के बच्चों ने खूब डुबकियां लगाई और भरपूर लुत्फ अंदोज हुए, जबकि दुकानदारों के लिए ये सूरत हाल परेशान कुन थी। दुकानों में पानी दाखिल होने से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कारोबार ठप होके रह गया। दुकानदारों का कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी दीना जल्द अज जल्द नालों की सफाई कराए ताकि सीवरेज का निजाम बेहतर हो सके। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। लालिया में झंग, चनियोट और फैसलाबाद को मिलाने वाली अहम शाहराह टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गड़े पड़ जाने से हादसात मामूल बन गए। शकील अब्बास की रिपोर्ट देखिए। तहसील लालिंग की अहम तरीन शाहराह कलरी बुआना रोड, जो कि चंद अरसा पहले करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई थी, जिस पर सरगोदा, चिन्योट और फैसलाबाद जाने वाली गाड़ियों का काफी रश होता है। सड़क के दोनों तरफ से टूट फूट का शिकार है। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिनसे आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। सड़क की मुनासिब देखभाल न होने की वजह से सड़क टूट फूट का शिकार बनी। साइड न्यूज से बात करते हुए लोगों का कहना था, जमीन डिगी जाती है, किदा ना कोई अरसा हो वंदा है जी, कोई मोड़ मुरम्मत होया जावे तो जी है, नहीं तो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर इस रोड की मुरम्मत न करवाई जाए तो ये मजीद खस्ताहाली के शिकार हो जाएगा। लोगों ने डीसी चिन्योट और वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि इस रोड की जल्द अज जल्द मुरम्मत की जाए। कैमरामैन अली जैन के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज़, लालिया। भोंग तपीर हुसैनाबाद रोड टूट फूट का शिकार है। हादसात मामूल बन गए, जबकि शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली बलोच। भोंग तापीर हुसैनाबाद मेटर रोड टूट फूट का शिकार है। आए रोज इस सड़क पर हादसात का होना मामूल बन चुका है। हल्की बारिश होने पर सड़क जोहर तालाब का शक्ल अख्तियार कर लेता है। अहले इलाका के लोगों का कहना है, रोड का हालात आपके सामने है। यहाँ के जो मुकामी MP MNA हैं वोट तो ले जाते हैं, मगर 5 साल तक यहाँ नजर करम भी नहीं करते। यहाँ पे इस रोड की हालत की वजह से काफी कीमती जाने को नुकसान हो गया है। यहाँ पे आए रोज हादसा मामूल बन चुके हैं। यहाँ पे बारिश हो जाए तो रोड जोहर का मंजर पेश करने लगता है। हम DC रहीम यार खान से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए ताकि मजीद कीमती जानों के नुकसान होने से बच सकें। जिनका यही कहना है कि हम DC रहीम यार खान से मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे जो ये रोड है इसका मुरम्मत का काम जल्द से जल्द जारी किया जाए। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद सांगड़ में खवातीन और बच्चों की तफरीह के लिए बनाया गया पार्क खस्ता हाली का शिकार है। रिपोर्ट करेंगे इशफाक सलहरी। 1962 में डिप्टी कमिश्नर सांगड़ ने सांगड़ की खवातीन और बच्चों की तफरीह के लिए गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ पार्क तमीर किया गया, जहां पर कीमती जानवर, परिंदे और झूले भी लगाए गए ताकि सांगड़ की खवातीन और बच्चों को यहां पर तफरीह मिल सके। 2011 और 2005 का आने वाला सैलाब का पानी, शहर भर का पानी इस पार्क में छोड़ दिया गया, जिसकी बिना पर पार्क तबाह हो गया। सबका डिप्टी कमिश्नर सांगड़ उमर फरूक बलो की जानिब से इस पार्क को दोबारा तमीर करने के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से टेंडर किया गया और इसकी तमीर का काम शुरू कर दिया गया, मगर हालिया बारिशों के बाद जिले भर का पानी इस पार्क में छोड़ दिया गया, जिसकी बिना पर एक बार फिर शाह अब्दुल लतीफ पार्क तबाह हो गया। दूसरी जानिब इस पार्क में तमीर होने वाला काम भी नाकस है, जिसकी बिना पर शहरियों ने आला हकाम से अपील की है कि इस काम की इंक्वायरी कराई जाए और ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जाए और जल्द से जल्द इस पार्क को तमीर किया जाए ताकि सांगड़ की खवातीन और बच्चे इस पार्क में तफरीह कर सकें। यहाँ के जो तमाम जो तरक्याती फंड्स यहाँ पे जो लगाए गए थे वो तमाम के तमाम पानी की नजर हो गए और एक बार फिर पार्क जो है गुलिस्तान लतीफ वो फाल ना हो सकेगा और ना जहाँ पर बन सकेगा। वो सांगड़ के आवाम को एक अरसे तक जहाँ पर तफरीह सहूलतें फराहम नहीं हो सकेंगी। दूसरी जानिब सांगड़ के अंदर रिलीफ का काम भी जारी है, लेकिन बारिश का पानी नशीबी इलाकों में इस वक्त भी मौजूद है, जिसकी बिना पर स्टाफ की जानिब से बहुत कम स्टाफ होने के बिना पर यहाँ पर लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। लोग इस वक्त परेशान है, लेकिन मच्छर की भरमार भी शुरू हो चुकी है, कीड़े मकोड़ों की भरमार हो चुकी है, जिससे सांगड़ के आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कैमरामैन अजीज रमान के साथ इशफाक सुलरी, सांगड़। आगे बढ़े और आपको खबर दें गुजरावाला से, जहां भट्टियों से निकलने वाला जहरीले धुएं से शहरी और मजदूर फेफड़ों के मौलिक अमराज में मुब्तला होने लगे। साजिद अवान की रिपोर्ट देखिए।
जीटी रोड से मुल्हिका शेखुपुरा रोड के इलाका मकीन स्क्रैप की भट्टियों से निकलने वाले जहरीले धुएं के बाइस मुहलिक अमराज में मुब्तला होने लगे। जहरीले धुएं के बाइस इलाका मकीन फेफड़ों, सांस, जिल्द और दीगर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। स्क्रैप की इन भट्टियों में पुराने टायर, चमड़ा, बैटरी और प्लास्टिक को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाइस इलाका भर में सुबह सवेरे ही जहरीले धुएं के काले बादल आसमान को ढांप लेते हैं। इन भट्टियों में काम करने वाले मजदूर बगैर किसी हिफाजती तदाबीर के काम करने पर मजबूर हैं, जो जहरीले धुएं से सांस की नाली में सोजिश, फेफड़ों की खराबी और कैंसर जैसे मुहलिक अमराज का शिकार हो रहे हैं। धुएं की वजह से हम बहुत परेशान हैं। ये रहायशी इलाकों में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, इस धुएं की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। हमारे घरों के करीब ये जो गंदी फैक्ट्रियां देखें, उसकी वजह से मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं और जो हमारे बच्चे हैं उनको भी फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन लें। हुकूमत को चाहिए कि बराए मेहरबानी इनको बंद किया जाए। छोटे छोटे बच्चे धुएं की वजह से बहुत बीमार हो रहे हैं। फिजा में जहरीले केमिकल शामिल होने के बाइस सांस के मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। अगर महकमा माहौलियात व जिले इंतजामिया सख्ती से माहौलियाती कवानीन पर अमल दरामद करवाए तो जहरीला धुआं छोड़ने वाली इन फैक्ट्रियों से वाबस्ता हजारों मजदूरों और मुल्हिका आबादियों के मकीन न सिर्फ सुकून का सांस लेंगे बल्कि बेपनाह बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। कैमरामैन अली रजा के साथ साजिद आवान, सच न्यूज, गुजरांवाला। इमाम बारगाह हुसैनिया गाजियाबाद चकवाड़ा चकवाल में 24वें सालाना मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई और शबीए गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की और शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। 16 मुहर्रम उल हराम अशरा सानी 24वां सालाना शबीए अलम गाजी अब्बास अलमदार का जुलूस SSP बेदार जफर शाह मरहूम की रिहाइशगाह से बरामद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों की मातमी संगतों ने शिरकत की। जुलूस में नौखानों ने नौखानी करके और अज़ादारों ने अज़ादारी करके शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया गाजियाबाद में इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिससे मुल्क के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन ने फ़लसफ़े शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान करते हुए कहा कि वाक़े करबला हमें हक पर डट जाने, सच बोलने का दर्स देता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर यजीद के सामने बैयत कबूल ना की। जुलूस और मजलिस का एहतमाम सैयद फैसल अब्बास शाह ने किया, जबकि लंगर हुसैनी का भी खसूसी इंतजाम किया गया था। अपनी टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में बड़े पैमाने पर भिंडी काश्त की जाती है और मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों के साथ बैरून मुल्क एक्सपोर्ट भी की जाती है। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में बड़े पैमाने पर भिंडी काश्त की जाती है और साल के 8 महीने तक खरीदो फरोख्त जारी रहती है। कमालिया की सब्जी मंडी से अफगानिस्तान, कोयटा, पेशावर, सखर और मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में भिंडी भिजवाई जाती है। कमालिया एक तारीखी शहर है। सब्जी मंडी अंदरून शहर की सिंगल सड़क पर वाक़, जिससे आए रोज ट्रैफिक जाम रहती है, जिससे राहगीरों और मंडी में आने जाने वाले किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, बारिशों और सीवरेज के गंदे पानी का निकास न होने से मंडी में कीचड़ और गंदगी से किसानों और शहरी को शदीद अजियत से दो चार होना पड़ता है। बारिशें होने की वजह से यहाँ पे पानी खड़ा है और जिम्मेदार जो हैं बड़ी मुश्किल में है। एक तो भिंडी की चुनाई में मसला हो रहा है और इसके अलावा लोगों के आने जाने की आमदोरफ्त में मसला आ रहा है। बाकी दूसरा जो है अपना हमारी हुकूमत से अपील है कि वो इस तरफ ज़रा मुतवज्जे हों और हमारी सब्जी मंडी के हालात जरा बेहतर करें। सब्जी मंडी तंग होने से किसान सब्जी मंडी से बाहर सड़क पर ही सब्जियां और भिंडी बेचने पर मजबूर हैं। सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर किसानों और आड़तियों का कहना था। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, मुकामी MP आशफा रियाज फतेहाना और MNA रियाज फतेहाना से अपील है कि सब्जी मंडी को शहर से बाहर खुली जगह पर फिलफौर मुंतकिल किया जाए, ताकि मंडी में आने जाने वाले किसानों को आसानी हो और साफ सुथरी सब्जी मंडी शहर की पहचान बने। असद राजपूत, सच न्यूज TV, कमालिया। पाकिस्तान कपास पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है, जबकि खानेवाल कपास की फसल के लिए रोल मॉडल जिला है। रिपोर्ट करेंगे ताहिर अब्बास। दुनिया भर में कपास पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, जिसमें खानेवाल कपास की फसल के लिए रोल मॉडल जिला है। हालिया होने वाली बारिशों की वजह से कपास की तैयार फसल को मुख्तलिफ बीमारियों का सामना है, जिसकी वजह से काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। होने वाली बारिशों से कपास की तैयार फसल को लगने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। मौसम की वजह तो साडा जी मुतालबा है, बारिश पानी बड़ा खड़ा हो गया तो सुंडियां ते तेला सफेद मक्खी का बड़ा हमला है जी, ते पानी असा कढ़दे तक खले हैं जी,
ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਫੀਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਬਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਅਗਾਈ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ। नवीद असमत कालू डिप्टी डायरेक्टर ज़री अतलात साउथ पंजाब ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया बारिशों की वजह से कपास की फसल पर मस्बत और मनफी असरात मरतब हुए हैं। जहां तक मस्बत असरात का तल्लक है, कपास पर मौजूद सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल हुआ है। इसके अलावा पानी की कमी दूर हुई है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हुई है, उसकी ग्रोथ नॉर्मल हुई है। और जहां तक मनफी असरात का तल्लक है, नमी बढ़ने की वजह से सब्ज तेला बढ़ेगा। इसके अलावा जो पानी जिन खेतों में खड़ा है, उन खेतों में पौधे मुरझाने का डर है। डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि कपास की फसल आखिरी मराहिल में है। अगर बारिशें ज्यादा हो तो पानी 24 घंटे से ज्यादा कपास की फसल में खड़ा ना होने दें। काश्तकारों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फील्ड में काम करने वाले अफीसरों का टाइम बढ़ाया जाए और फील्ड अफीसर काश्तकारों को आगाही दें ताकि कपास की खड़ी तैयार फसल को बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ ताहिर अब्बास, सच न्यूज, खानेवाल। टांगा घोड़ा ज़माने कदीम की शाही सवारी थी, मगर आज के जदीद दौर में इसकी जगह वैगनों, बसों और रिक्शों ने संभाल ली है। देखते हैं हाफिज शेर अफजल की रिपोर्ट। वक्त का पहिया इस तेजी से घूमा कि टक टक करती आवाजें शोर शराबे में कहीं खो ही गईं। बाहर से आए मेहमान हो या फिर अंदरून शहर के शहरी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए टांगे की सवारी पर सफर करना पसंद करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो बसों, वैगनों और रिक्शों ने टांगे की जगह संभाल ली। ये टांगे बाजारों और रेलवे स्टेशनों पर भी मिला करते थे, जहाँ टांगे मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम करते थे। टांगे की सवारी पर ना सीएनजी की कोई फिक्र होती थी और ना ही पेट्रोल का कोई मसला था। टांगा एक हवादार सवारी हुआ करती थी, जहां शहरी पुरसुकून और इंतहाई कम किराया से ही टांगे पर खुश होकर सफर करते थे। दीरबाला में जिरगे के जरिए दो ग्रुपों के दरमियान दरीना दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया गया। गुज़श्ता 40 साल के दौरान 20 से ज्यादा अफराद जाँ बहक जबकि 24 अफराद जख्मी हुए थे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इस्लाम। बाला में गुज़श्ता 40 साल से जारी दुश्मनी का जरगे के जरिए खात्मा, फरीकैन ने एक दूसरे को माफ करके आइंदा बायों की तरह रहने का आज़म कर लिया। इस सिलसिले में असम्बली हाल दीर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में दीर बाला की सियासी व कौमी मशरान, डिप्टी कमिश्नर दीर बाला शहाब हमीद यूसुफजई, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक इकबाल, जरगा मेंबरान समेत अमायदीनी इलाका और फरीकैन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिन ने कहा कि इस्लाम हमें अमन और सलामती का दर्स देता है। हमें आपस में इख्तिलाफात को बुलाकर एक दूसरे को माफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरगा पुख्तून मुआशरे का एक अहम जुज है और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और यही वजह है कि दीर बाला में मुख्तलिफ तनाज़ात जरगों के जरिए हल हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शहाब हमीद यूसुफजई और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक इकबाल ने जरगा सिस्टम पाल रखने और दीर बाला में अमन व अमान के क़याम पर दीर बाला की कौमी और सियासी मशरान के किरदार को सराहते हुए इनकी तारीफ की। इस मौके पर फरीकैन ने जरगे के सामने एक दूसरे को माफ करके आइंदा के लिए बायों की तरह रहने का आज़म कर लिया। मोहम्मद इस्लाम, सच टीवी, दीर। बाप का बेटी से मिलना भी जुर्म बन गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सुनामा में ससुरालियों ने बेटी से मिलने पर बाप को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना दिया। तशद्दुद का शिकार बनने वाले अब्दुल रहमान की बीवी नाराज होकर मैके बैठी हुई थी। अब्दुल रहमान अपने रिश्तेदार इरफान के हमरा ससुरालियों के घर 4 साला बेटी को मिलने गया तो ससुरालियों ने पिलर से बांधकर तशद्दुद का निशाना बना दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों फरीकैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद ने असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी के हमरा दरियाए रावी से मुलक्का इलाकों का दौरा किया और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद ने दरियाए रावी से मुलक्का इलाके मौजा चेक नंबर 742 समेत दीगर इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था दरियाए रावी में पानी मामूल के मुताबिक है और सैलाब का इम्कान नहीं, मगर इंतजामिया किसी भी नाआगानी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट है। उनका मजीद कहना था दरियाए रावी में पानी के बहाव के अमल को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जा रहा है। लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने बारिश के दौरान टंडो जाम का दौरा किया और मुतलका इदारों को फौरी तौर पर बारिश का पानी निकालने की हिदायत की। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अली।
डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफार सुमरो पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली के तारिक शाह जामोर ने टंडो जाम में होने वाली शदीद बारिश के दौरान टंडो जाम के मुख्तलिफ बाजारों, सेवरेज स्टेशन, मुख्तलिफ जगहों पर लगे हुए पंपिंग स्टेशन का दौरा किया और टंडो जाम शहर में बारिश के दौरान खड़े हुए पानी का भी जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफार सुमरो ने महकमा पब्लिक हेल्थ के मुतल्लिक अफसरान को सख्ती से हिदायत की कि वो जल्द से जल्द मुख्तलिफ बाजारों, गलियों, मोहल्लों में जमा हुआ बारिश के पानी को निकालने के लिए फौरी इक़दाम जारी करें और तमाम मशीनरी जनरेटर को 24 घंटे के लिए अलर्ट रखा जाए। उन्होंने तमाम अमले को भी हिदायत की कि वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहें। जिनके इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का मसला है वहां पर जनरेटर लगाकर पानी निकाला जाए। इस मौके पर अंजुमन ताजरान टंडो जाम के सदर अब्दुल मनान राजपूत ने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद को लाइन की बार बार फटने की जानिब तवज्जो दिलाई, जिस पर उन्होंने जल्द नई सीवरेज लाइन डालने की यकीन दहानी करवाई। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफार सुमरो ने टंडो जाम के करीब मसू भुरगुड़ी में दौरा किया। इलाके में होने वाली बारिश के दौरान खड़े हुए पानी को फौरी निकालने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर उनके हमरा चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर शाहजहान पावर, असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद तल्क सोबान शोरो, एसकेएन पब्लिक हेल्थ शौकत महमूद, अंजुमन ताजरान टंडो जाम के सदर अब्दुल मनान राजपूत, गुलाम रसूल शाह और दीगर अफसरान मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ मिट्टू के साथ जुनैद भट्टी, सच न्यूज टंडो जाम। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अभी के बाद आपको खबर दें लोधरा से, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए होने वाले टेस्ट की खुद मॉनिटरिंग की। रिपोर्ट करेंगे काजिम अब्बास। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस लोधरा अब्बास अख्तर के तबादले के बाद नशिस्त खाली होने की वजह से लोधरा में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए ड्राइविंग टेस्ट नहीं हो रहे थे, जिससे शहरी परेशानी का शिकार थे। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए होने वाले तहरीरी और अमली ड्राइविंग टेस्ट लेने की अथॉरिटी इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद निसार को मिलने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए ड्राइविंग टेस्ट का अमल शुरू कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए होने वाले तहरीरी और अमली ड्राइविंग टेस्ट का सरप्राइज विजिट करके ड्राइविंग टेस्ट के तमाम तर मराहल की खुद मॉनिटरिंग की। इस मौके पर इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद निसार, मोटर व्हीकल एग्जामिनर मोहम्मद जीशान और इंचार्ज लाइसेंस ब्रांच मोहम्मद अशफाक भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने ड्राइविंग लाइसेंस के उम्मीदवारों को मसाइल भी सुने और हल करने के अहकाम जारी किए। डीपीओ सैयद करार हुसैन का इस मौके पर कहना था कि ड्राइविंग टेस्ट के अमल को इंतहाई शफाफ बनाया जाएगा और करप्शन को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखकर ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा मुमकिन बनाया जाएगा। तमाम कानूनी कार्रवाई और म्यार पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारों को ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज लोधरा। शेखुपुरा में जल थल से एक हो गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, निकासी आब के इंतजामात का जायजा लिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मुश्ताक। शेखुपुरा में घंटों जारी बारिश से शेखुपुरा के नशीबी इलाकों में बारिश का पानी जमा है, जिस पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन का अमला निकासी आब में मसरूफ है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने असिस्टेंट कमिश्नर और सीईओ म्यूनिसिपल कारपोरेशन के हमरा बारिश से मुतासरा इलाकों में म्यूनिसिपल कारपोरेशन की जानिब से किए गए इंतजाम का जायजा लिया और फौरी तौर पर पानी की निकासी के इंतजाम करने की हदायत की है। डिप्टी कमिश्नर ने बारिश में डिस्पोजल का भी जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बारिश में नशीबी इलाकों का जायजा लेने का मकसद निकासी आपको फौरी तौर पर यकीनी बनाना है, ताकि शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो, और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अमले से मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई भी की। साथ ही कैमरामैन के साथ मोहम्मद मुश्ताक, सच न्यूज, शेखुपुरा। मुल्क भर की तरह नईम यार खान के इलाके कोट सब्जाल में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। फलों और सब्जियों समेत अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रिपोर्ट करेंगे हमादुल्ला। कोट सब्जल और उसके नवाई इलाके संजरपुर शहर भर में मनमाने रेट्स पर अशिया की फरोख्त जारी। मकामी इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां बुरी तरह नाकाम। शहर भर में आटा नायाब, चक्की मालकान मनपसंद रेट में फरोख्त करने लगे। चीनी और आटे की कीमतों के बाद फरोख्त सब्जियों की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा। रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियों का मिलना नामुमकिन। दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट फिक्स कर लिए। 20 किलो की आटे की थैली 860 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से रेट तय किया गया है, जबकि हमें से 1150 और 1200 रुपए वसूल कर रहे हैं। हमारी आला हुकाम और असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद से अपील है कि इन नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ अमादुल्ला, सच टीवी, कोट। मंचनाबाद में पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुकदमात में पकड़ी जाने वाली गाड़ियां थाने के बाहर फेंक कर चोरों के रहमो करम पर छोड़ दी गईं। गाड़ियों के पुर्जे गायब हो गए। कीमती गाड़ियां कबाड़ का ढेर बन चुकी हैं। रिपोर्ट करेंगे नदीम हसन पराचा।
थाना मिंचनाबाद में मुख्तलिफ मुकदमात में बरामद होने वाली मुतअद्दिद गाड़ियां थाने के बाहर चोरों के रहमो करम पर रख दी गई हैं। अरसद रात से खड़ी इन गाड़ियों की कीमती पुर्जाजात चोरी हो चुके हैं, जबकि अब सिर्फ इन गाड़ियों के ढांचे ही बाकी बचे हैं। कबाड़ के ढेर में तब्दील होने वाली इन गाड़ियों को महफूज मुकाम पर न रखे जाना मिंचनाबाद पुलिस की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ मुकदमात में थाने के अंदर बंद की जाने वाली मोटरसाइकिल्स भी इस वक्त संगलूद हो चुकी हैं। माल मुकदमात में बंद की जाने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करना और इन्हें चोरों के रहमो करम पर छोड़ना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन गुलाब अली के साथ नदीम हसन प्राचा, सच न्यूज़, मिंचनाबाद। दरिया सिंध में तुग़यानी के बायस ठुल हमजा से मुल्हक्का कच्चे इलाके मौजा चौहान में सैलाबी सूरत हाल है। इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप और खैमा बस्तियां कायम कर दी गयी। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकत पर मोहम्मद अरशद वट्टू का कच्चे के इलाके मौजा चौहान जो कि दरिया सिंध में तुग़यानी के बाद सिलाब की लपेट में है का विजिट किया। सिलाब जदगान के लिए कायम किए गए फ्लड रिलीफ कैंप का जायजा लिया और इंतजामिया को हिदायत जारी की कि सिलाब जदगान की हर मुमकिन मदद की जाए, इसमें कमी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बारे असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद वट्टू ने बताया कि इस मुसीबत की घड़ी में सिलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियां कायम कर दी गई हैं। डॉक्टरों और रेस्क्यू 1122 की टीम हर वक्त मौजूद रहेगी जो मरीजों के लिए फ्री इलाज, मुआवजा और किसी भी मुश्किल सूरत हाल में सिला मुतासरान की देखभाल में मसरूफ रहेंगे। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, साथ टीवी टोलमजा। सिंध के दूसरे बड़े और कदीम शेख तैयब कब्रिस्तान के मकबरे और कब्रें अदम तवज्जो के बायस मिस्मार होने लगी। शहरियों ने सिंध हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। खैरपुर में मौजूद मकली सानी के नाम से मशहूर सिंध के दूसरे बड़े और तारीखी शेख तैयब कब्रिस्तान महकमा आसार कदीमिया की अदम दिलचस्पी और लापरवाही की वजह से कदीमी मकबरे और कब्रें मुस्मार होने लगी। कब्रिस्तान में रियासत के खैरपुर के जर्नल, मुख्तलिफ बुजुर्ग शख्सियात, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ कबाइल के सरबराह और सिंध के नामूर डाकू भी मदफन है। इस कब्रिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइम मशहूर हैं। इस हवाले से मौक़िफ़ निकाद अल्लामा हिज़्बुल्लाह सुमरूद का कहना है कि जो शेख तैयब का कब्रिस्तान है ये सिंध में सानी मकली कहलाता है। ये शेख तैयब सुमरा दौर के आखिर में होकर गुजरे हैं। इसके वफ़ात सन 1046 हिजरी है और ये इसमें कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है। याकूब दफन हैं, गुलू गवर्नमेंट और दूसरे जो भी हैं। मुहक्किकीन और शहरियों ने सिंध हुकूमत से महकम आसार कदीमिया की लापरवाही का नोटिस लेकर इस तारीखी वर्षे को बचाने का मुतालबा किया है। कमीर में अरसे दराज से टूट फूट का शिकार आरिफ वाला की रोड तामीर का काम शुरू हो गया। सड़क की असर नो तामीर पर शहरी खुश हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अरशद। कबीर साहिवाल से आरिफ वाला रोड जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था, आए रोज गाड़ियों का खराब होना और एक्सीडेंट मामूल बन चुके थे। रोड की अजसरनो तामीर पर अवामी और समाजी हलकों ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, जिलाई जनरल सेक्रेटरी साहिवाल मलक फैसल जलालुद्दीन डक्कू और उम्मीदवार नेशनल असम्बली हलका 148 मलक मोहम्मद यार डक्कू की कोशिशों को सराहते हुए कहा, जिलाई इंतजामिया, वज़ीर पंजाब और मलक मोहम्मद यार डक्कू, फैसल जलालुद्दीन डक्कू, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने साहिवाल से आरिफ रोड जो कि टूट फूट का शिकार था और उन्होंने इनका रिपेयरिंग का काम करवाया है। पीटीआई हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब, मलक मोहम्मद यार डक्कू साहब टिकट होल्डर NA 148, मलक फैसल जलाल डक्कू साहब टिकट होल्डर PP 198, इन्हां दा दिल तो मशकूर हाँ जिन्होंने साहिवाल तो आरिफ वाला कमीर रोड की रिपेयरिंग का काम शुरू कराया है। साहिवाल तो आरिफ वाला रोड मुकम्मल तौर पर टुट फुट चुकिया सी, जगह जगह ते खड्डे सन जिस वजह तो आए दिन नए तो नए हादसात हो रहे सन, जानी नुकसान का ज़िया हो रहा सी। इस तो इलावा आवाम ने अपने ज़रिए जनास से मंडियां ले जाने की बहुत ज्यादा परेशानी सी। रोड की अजसरनो तामीर पर 196.006 मिलियन लागत आएगी। इसकी लंबाई 27.11 किलोमीटर है और ये काम 4 माह की मुद्दत में अपने पाया तकमील को पहुंचेगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 17 रुपए का पैकेज मुख्तस किया है जो कबीर और गिरदो नवाह साहिवाल में सड़कों की तामीर मुरम्मत और सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मोहम्मद अरशद, सच न्यूज़, कबीर। कोहाट में दोस्त मुल्क चाइना के ताउन से ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर कोहाट अब्दुल जब्बार शाह और डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने पौधा लगाया। मजीद बता रहे हैं अली बंगिश अपनी रिपोर्ट में।
दोस्त मुल्क चीन के तावन से फ्रेंडशिप ट्रीज प्लांटेशन प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर कोहाट अब्दुल जब्बार शाह और डिप्टी कमिश्नर कोहाट रिटायर कैप्टन अब्दुर्रहमान ने पौधा लगाकर प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। तकरीब में पाक चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी सैयद अली नवाज गिलानी भी शरीक हुए। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत पहले मरहले में 1000 पौधे लगाए जाएंगे। इस मंसूबे का मकसद सिर्फ पौधे लगाना नहीं बल्कि उनकी देखभाल भी पाक चीन दोस्ती की खातिर कोहाटी अवाम की जिम्मेदारी होगी। आखिर में मुल्क की सरसब्ज़ व शादाब और खुशहाली के लिए दुआ भी कराई गई। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में डेंगू से बचाव के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के ज़ेरे एहतमाम आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे जानसेब खान। डेंगू से बचाव के लिए आगाही वाक का एहतमाम किया गया। डेंगू से बचाव के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नजीब आलम, टिकट होल्डर सैयद अब्दुल माजिद, MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर खान वजीर, तहसील इंचार्ज रेस्क्यू 1112, अदील गफार, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ और साजिद महमूद खान की जेर क़यादत आगाही वाक की गई। आगाही वाक दरखास्ती चौक से कैप्टन फयाज शहीद चौक तक की गई। वाक के अख्ताम पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नजीब आलम ने खिताब करते हुए कहा कि हमें अपने घरों और इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना चाहिए। बारिशों के मौसम में छतों पर पानी खड़ा ना होने दें ताकि डेंगू पैदा ना हो सके। आज डेंगू डे मनाने का मकसद कि हम अपने घरों में, दुकानों में, मोहल्लों में, शहरों में सफाई का एक अच्छा इंतजाम कर सकें जहां पर हम डेंगू लार्वा की पैदाइश को रोक सकें। डेंगू के हवाले से आज का दिन निहायत अहम है। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि लोगों को आगाही दी जाए इस बात की कि वो अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। डेंगू के हवाले से जो इनिशिएटिव है PM साहब का और DC साहब का, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने गली मोहल्लों में पानी ना खड़े होने दें और जो स्पेशली जो हम पौधे लगाते हैं और गमले लगाते हैं उनमें उतना पानी डालें जो कि उसकी जरूरत के मुताबिक। जैसा उन्होंने कहा कि डेंगू को रोकने के लिए अपने घरों के जो इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, गंदा पानी खड़ा ना होने दें। कैमरामैन टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज़, खानपुर। पेशावर के कयूम स्टेडियम में सूबाई सतह पर खेला गया स्क्वॉश टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में 32 खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। पेशावर से अदनान शाहिद की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में तवील अरसा गुजरने के बाद एक बार फिर खेलों की सरगर्मियां शुरू हो गईं। पेशावर के कयूम स्टेडियम में सूबाई सतह पर होने वाले स्क्वॉश टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया जिसमें अंडर 11 और 13 के 32 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कि पिछले 5-6 महीने से कोरोना ने इसको पकड़ा हुआ था टूर्नामेंट्स को। तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो थी पाकिस्तान के अंदर वो मुअत्तल थी। स्क्वाश भी उसका एक हिस्सा था। अभी इसी महीने हुकूमत ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, मरकज़ ने स्पोर्ट्स को रिलीज़ किया कि जी आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं। तो हमने फ़ौरन पाकिस्तान के अंदर पहला स्क्वाश टूर्नामेंट है जो खैबर पख्तूनख्वा ने स्टेप लिया और हमने ये टूर्नामेंट शुरू किया। टूर्नामेंट के इख्तितामी रोज स्क्वाश के आलमी चैंपियन कमर जमान का पाकिस्तान में स्क्वाश के गिरते मयार के हवाले से कहना था कि खिलाड़ियों में टैलेंट मौजूद है मगर वो सिर्फ बाहर जाने के ख्वाब देखते हैं जिनकी वजह से इनका ध्यान खेलों की तरफ नहीं होता। कोर्ट्स की कमी नहीं है, लड़कों में वो जान नहीं है। आजकल का जो लड़का है वो खेलना कम चाह रहा है, अमेरिका ज्यादा जाना चाह रहा है। तो वजह ये है, हम लोग जो थे हम लोग खेलना मांगते थे। इसमें से किसी लड़के से पूछे कि 2 घंटे सुबह कौन रनिंग करता है, 2 घंटे अकेला कौन खेलने आता है। फाइनल के मौके पर जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात के साथ साथ नक़द रकम भी दी गई। कैमरामैन असद आबिद के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। पंजाब स्पोर्ट बोर्ड के ज़ेरे तमाम इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम गोजरा में फ्री हॉकी ट्रेनिंग कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। 10 से ज़ायद ओलंपियन और इंटरनेशनल कोचेस फ्री ट्रेनिंग देंगे। रिपोर्ट करेंगे राना मशहूद। गोजरा में इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में फ्री हॉकी ट्रेनिंग कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह पोली केबल नेटवर्क के डायरेक्टर्स राना मोहम्मद अमजद खान और मियां मोहम्मद इरफान की जानिब से किया गया। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में हॉकी प्लेयर्स ने मियां इरफान और राना अमजद और मोहम्मद शाबान का शानदार इस्तकबाल किया। 15 रोजा इस फ्री हॉकी ट्रेनिंग कैंप में 10 साल से लेकर 18 साल तक के लड़कों लड़कियों को हॉकी के 10 से जायद ओलंपियन और हॉकी के कोच खावर जावेद
इंटरनेशनल कोचेस और इंटरनेशनल प्लेयर्स हॉकी की ट्रेनिंग देंगे। इफ्तिताही तकरीब में इंटरनेशनल प्लेयर इरफान सीनियर और साबिक सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ओलंपियन राना मुजाहिद ने बतौर मेहमान एजाज शिरकत की। ट्रेनिंग सुबह और शाम दोनों औकात में दी जाएगी। ट्रेनिंग कैंप का मकसद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हॉकी के नए टैलेंट को तलाश करना और हॉकी के खेल को फरोग देना है। राना मशहूद, सच टीवी, गोजरा। इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त दीजिए इजाजत। मजीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।